شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ تو مسلمانوں آپ کی اوقات، ہماری اوقات، ان علماء کرام کی اوقات کیا ہے کہ کوئی میرے غوث کو بلائے؟ میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں اگر جب تک میری رضا، جب تک میری مرضی نہیں ہوتی ہے، میری مرضی کے بغیر کوئی میرا نام لیتا نہیں ہے، کوئی میری مرضی کے بغیر میرا نام لیتا نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت زمین میں جتنے محفل پاک، بزم پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے، غوث کی میلاد منائی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے پہلے میرے غوث کی رضامندی ہوتی ہے تب جا کر میلاد ہوتا ہے، ورنہ کوئی اپنی مرضی سے میلاد نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں یہ بزم پاک غوث اعظم کے نام سے تسلیم کیا گیا ہے، اور وقت میرا بڑا سے بڑے نکل چکا ہے، اور بس ملے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں آل پیغمبر کے متعلق سب نے بتایا، میں نے جس آیت کریمہ کو موسم سکون بنایا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بولوں، 15 منٹ کا وقت ملایا، اب اس میں اس کے متعلق بتاؤں یا اس کے متعلق، پھر کبھی وقت ملے گا، بس شورت میں بتانا چاہتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا، اس کا مقام کہاں ہے؟ جنت میں دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا کہا؟ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا، خواہشات میں سے کہتے ہیں ملا بتائے گا آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ آؤ بھائی ہم جائیں گے بریانی کھائیں گے، اسی کو کہتے ہیں خواہش۔ خواہش مانے اپنی اچھا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں خواہش۔ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا اس کا مقام جنت ہے۔ تو مسلمانوں آپ دیکھیں کہ نفس کو خواہشات سے باز رکھنے سے مولا کو جنت میں مقام بلند کر دیتا ہے، جنت کو عطا کرتا ہے، مگر مقام کو بلند کرتا ہے۔ تو مسلمانوں اسے سمجھنے کے لیے حبیب الرحمان کا عرص آ رہا ہے، وہاں چلے جائیں پتہ چل جائے گا۔ یاد رکھنا یہ حبیب الرحمان تب تک حبیب الرحمان تھا جب تک اپنی حویلی میں نماز ادا کرتا تھا، حبیب الرحمان تب تک حبیب الرحمان تھا جب تک جبل خلد سے زمین کو آیا کرتا تھا، حبیب الرحمان تب تک حبیب الرحمان ہی تھا جب عبد المنان علیہ رحمت اولاد تھا، تب تک الفی سے زمین کو آیا تھا، جب تک نماز پڑھا کرتا تھا، جب تک روزے رکھا کرتا تھا، حبیب الرحمان تھا۔ مگر جب اس نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کے مطابق اپنے نفس اپنی خواہشات کو دور رکھ دیا، تب رب نے کہا اے حبیب الرحمان نماز پڑھنے کے بعد تو حبیب الرحمان تھا، مگر تقویٰ و پرہیزگاری کے بعد تو نے نفس کو خواب سے دور رکھا، میں نے تیرے مقام کو اتنا بلند کیا، حبیب الرحمان سے تجھے مجاہد ملت بنا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک میرے پروردگار نے کوئی علماء کرام بیٹھے ہیں آپ کے خطیب و امام، کل صبح سویرے جائیں گے اور کہیں گے کہ اسحاق رضوی نے کہا اللہ کے ولیوں کو یہ شرف نمازوں کی وجہ سے ملا ہے، عبادتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ یار کسی نے ہم کو قرض دیا ہے 10,000 روپے، آپ بتائیں آپ اگر اس کا قرض دیں گے آپ بری ذمہ ہوں گے یا وہ بری ذمہ ہوگا؟ آپ کہیں گے ہمارا احسان نہیں اس کا احسان، کیونکہ اس نے ہم کو قرض دیا ہے۔ تو نماز آپ پر فرض ہے، آپ کو حلال میں ادا کرنا ہے، اس کے لیے نامہ اعمال میں اضافہ کیا جائے گا لیکن مراتب بلند نہیں کیے جائیں گے، آپ کی اوقات بلند کیا نہیں جائے گا، کیونکہ زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے یہ الگ بات ہے، ساری چیزیں الگ، لیکن مقام، خطوبیت، ابدالیت، اشترا، اوتاد، اوقات، یہ سارے مقامات حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ نفسانی خواہشات کو باز رکھنے کی وجہ سے غوث اعظم کو غوث سلطانی بنایا گیا ہے۔ تو مسلمانوں آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں گے، پوچھیں گے اے غوث کیا آپ کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے؟ آپ آمنہ
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। वाह, बेशक बहुत अच्छी बात। आप देखें कि परवरदिगार आलम ने क्या शान बख्शी है। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। तो मुसलमानों, शुक्र के जोश को आप समझते हैं ना, ये उलमाए कराम समझते होंगे। शुक्र का जोश उसे कहते हैं कि बंदा जब कुतुबियत से और भी आगे बढ़ जाता है ना, अपना सबूत नहीं रहता, गंदे नाली के कीड़े को भी उठा करके खा लेता है। इस हाल में रहता है तो अल्लाह के अलावा कुछ नहीं रहता, उसे कुछ पता नहीं चलता। और याद रखे, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जो अल्लाह की याद में शुक्र में जोश में, शुक्र के जोश में गुम हो जाता है ना, अल्लाह की याद में अगर वो गंदी नाली का कीड़ा भी उठा करके खा लेना, अल्लाह जन्नत के निवालों में से एक निवाला उसे खिलाता है। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। अगर कोई अफगानियत से, औकात से आगे बढ़ने के बाद जो शुक्र के हाल में है, अगर उसने अब तक अब्दुल कादिर जिलानी को पहचान नहीं पाया, ये कल के लल्लू पंजू क्या पहचानेंगे। मुसलमानों, मेरे खौफ को कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि अक्सर इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा सब घराना नूर का। पहचानेगा मेरे खौफ को। तो मुसलमानों, चलते चलते वक्त बहुत किल्लत दामनगीर है। और तो मुसलमानों, सबने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र किया। मेरे ज़हन में फौरन एक रिवायत याद आ गई। अब सुने, इंशाअल्लाह ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। मुसलमानों, 15 मिनट का वक्त देंगे, क्या बताएं यार, तमहीदी के बाद में 10 मिनट निकल जाते हैं, मगर पहले से ही मुझे गर्म होना पड़ता है। हजरत को मालूम होगा, बयान करने के लिए वक्त का जायका होना चाहिए, क्योंकि कोई बोलता नहीं है कि आपकी मोहब्बत है जो बुलवा लेती है। मुसलमानों, आप देखें कि सबने अहले बैत का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। मन सारा खबरी वजबतलहु समाती जाकर कौम रहू मसाला मलाइका। बेशक आप अहले बैत से मोहब्बत करें, और ये दोस्त अहले बैत में से हैं। मुसलमानों, आप देखें हजरत फातिमा ज़हरा की बातें अल्लामा साहब ने बताई, बहुत अच्छी बातें बताई है। तो मुसलमानों, आप थोड़ी देर 2-3 मिनट का रिवायत है, आप समाप्त कर लें, ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। दिल दर्द बिस्मिल की तरह लूट रहा है। तो मुसलमानों, आप देखें हजरत फातिमा ज़हरा के करीब में, घर के करीब में एक खातून के रोने की आवाज आई। पूरी तवज्जो से सुने, बहुत मजा आएगा। सहाबाए किराम का कौल है जिसे हदीस कही जाती है। मुसलमानों, आप देखें कि अब वो फातिमा ज़हरा अब फौरन उसके घर दौड़ कर चली गई, बहुत शॉर्ट में फौरन चली गई। और जाने के बाद कहने लगी, तू रोती क्यों है? तो कहने लगी, मैं हामिला हूँ, इसलिए रोती हूँ, दर्द हो रहा है, मगर मेरे शौहर का दर्द से ज्यादा लग रहा है। कैसा? मेरा शौहर बहुत बड़ा जल्लाद है, बहुत जल्लाद किस्म का है। एंड तक सुने, आखिर तक सुने, बहुत मजा आएगा। मुसलमान, मेरा शौहर बहुत जल्लाद है। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, तेरा शौहर अगर जल्लाद है तो रोने की वजह क्या है? कहने लगी, मैं हामिला हूँ, मेरे पेट में दर्द है, लेकिन वक्त अनकरीब है, मेरा बच्चा तवल्लुद हो जाएगा, अभी पैदा हो जाएगा। लेकिन माजरा डर इस बात की है, अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया, अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया। मुसलमानों, याद रखें, फातिमा का जिस्म तो दूर की बात, आप जन्नतुल बकी जाएंगे ना, आप कब देखेंगे, जन्नतुल बकी में जाने के बाद में कहीं पर आपको ये न सोचे कि फातिमा का कब्र मोतबर कब्र बनाया गया होगा। मुसलमानों, यूं ही बनाया गया है, मगर बता जिसे पुलिस वाले कहते हैं, जहाँ जमा होंगे आपको पता चल जाएगा वो फातिमा का कब्र मज़ार अनवर है। बताने का मतलब ये है, जन्नतुल बकी में जो पहरेदार हैं, उन्हें पता है लोग अगर जान लेंगे ना, ये फातिमा का कब्र है, ये जान देना गवारा करेंगे, यहाँ घुसकने का गवारा नहीं करेंगे। लेकिन वो पुलिस वाले ये सोचते हैं, तू लोगों को दूर करता है, मगर इस हाथ रसूल की हकीकत कहती है, तूने जो झगड़ा बनाया है, ये झगड़ा था, वहाँ देखकर समझ में आ गया, फातिमा ज़हरा पर्दा किसे कहते हैं। जब आप जिंदा सही सलामत
देखें तो मुसलमानों फातिमा तो जोरा जब वहां पहुंची, जाने के बाद कहने लगा मेरा शौहर बहुत बड़ा जल्लाद है, कहने लगी मेरा शौहर बहुत बड़ा जल्लाद है, बहुत मारेगा पीटेगा, कोई नहीं सोचेगा मैं हामिला हूँ और बात करीब है बच्चा तबल्लुद हो जाएगा। इतना कहना था कि अब दर्द में है, दर्द में है। अब बताएं जिसका नाम लेने से दर्द काफूर होती है, अगर दर्द वाला मरहम वहाँ मौजूद हो तो मुसलमानों अब देखे फातिमा ने कहा अच्छा ठीक है तो एक काम कर लेट जाओ, उसके पेट में इत्मीनान से हाथ मारने लगी नबी की बेटी, नूरानी वाले हाथ है उनके हाथ की क्या शान, उनके तलवे के धुआं बराबर भी कोई कुतुब अवतार बोल नहीं सकता। मुसलमानों आप देखें जब हाथ मारने लगी उसके शिकम पर बच्चा तबल्लुद हो गया, पैदा हो गया, वो भी बासानी, कोई दर्द नहीं रहा। उसने कहा अरे फातिमा कुछ दर्द का एहसास नहीं तो उसे सवाल करने वाले को पता होना चाहिए जिसकी दुआओं से अल्लाह दर्द को दूर करता है, अगर वो हाथ मारने दर्द कैसे हो सकता है। आप देखें फातिमा ने जब हाथ मार दिया बच्चा तबल्लुद हो गया। अब फौरन ये वाकया बहुत रिवायत बहुत बड़ी है अपने सोच में। अब फातिमा जाने लगी, कहने लगी फिर सारों पता होने लगी क्या न मैंने खाना नहीं बनाया, मेरा शौहर आएगा बहुत पीटेगा, नहीं देखेगा कि मैं बच्चा पैदा हो गया बल्कि वो मारना शुरू करेगा। तो कहने लगी फातिमा आप सुन के इत्मीनान हो जाए मुसलमानों, फातिमा तो जोरा की शान देखे। कहने लगी अगर शौहर मारेगा तेरे घर किचन रूम कहाँ है, खाना बनाने का कमरा कहाँ बता, मैं तेरे घर में खाना बना देती हूँ, मैं तेरे घर में खाना बनवा देती हूँ। अच्छा बताओ मुसलमानों फातिमा तो जोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसके घर में खाना बनाने लगी। अब जब खाना बना के उठने के बाद उसे तसल्ली दे दिया तुम इत्मीनान से रहो, तुम्हारा शौहर आएगा, मैंने खाना बना दिया, पानी दे दिया, दस्तरखान बिछवा दिया, तेरा शौहर आएगा खुद खाने बैठ जाएगा। अब जब शौहर आ गया, खाने बैठ गया, खाना खा लिया, जलादारी के बाद पूछा तक नहीं बीवी से, पूछा तक नहीं कि तू किस हाल में, कहने लगी खाना खा, बीवी ने कहा खाना मौजूद है आप खा लें। अब शौहर हर रोज खाता था अपनी बीवी के हाथ खाने वाला, अब दस्तरखान में हाथ धोकर के खाने लगा। अभी ईमान वाला नहीं बना मुसलमान, लेकिन फातिमा उसकी मदद के लिए खुद चली गई। अब जब ये वाला पहले ही लुक़मा खाया, अब खाने के बाद फौरन दौड़ करके बीवी के पास आ गया और आने के बाद कहने लगा सच्ची बता खाना किसने बनाया है, सच्ची बता खाना किसने बनाया है। चिल्लाकर डर डर के कांप कर कहने लगी हुजूर कोई गुस्ताखी हो गई, आप बता दें मैं सुधार कर लूंगी लेकिन आप नाराज ना हो। कहने लगी बताना खाना किसने बनाया है। बीवी कहने लगी आप बता देना गलती क्या हुई है ताकि मुझे तसल्ली हो जाए तब मैं बताऊंगी। तो खातिमा फिर सवाल करने लगा, अब अगर नहीं बताएगी ना मेरा कलेजा सीने से बाहर आ जाएगा, मेरा सीना चाक हो जाएगा, जल्दी बता खाना किसने बनाया है। अब खातून कहने लगी मेरे शौहर नामदार तुम जिस आमना के लाल को गालियां बकते हो ना, जब मैं ताकि थी वो आई मेरे पेट में हाथ भर दिया, बच्चा आसानी पैदा हो गया। जब मैंने कहा शौहर खाना तलाश करेगा, उन्होंने अपने हाथों से खाना बनाकर दस्तरखान बिछवाकर पानी का इंतजाम करके चली गई। अब आप नाराज क्यों हैं, खबरदार आप अगर जान लेना चाहते हैं आप मेरी जान ले ले, मगर फातिमा से बेहतर औरत मैंने देखा नहीं। खातून फातिमा से बेहतर औरत देखती कैसे, जबकि परवरदिगार ने ऐसी औलाद कभी किसी के तवल्लुद के लिए पैदा ही किए नहीं। जब किसी की माँ ने ऐसी औलाद जलाई गई